پروگرام میں بات کریں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ احسن اقبال، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم اس سے پہلے آج آزاد کشمیر بھی گئے تھے، جہاں انہوں نے حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کونسل اینڈ لیجسلیٹو اسمبلی سے خطاب بھی کیا۔ اس کے بعد بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جن کی قیادت آج پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں موجود تھی۔ برسی کے موقع پر شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے جلسے سے خطاب کیے۔ اور آخر میں بات کریں گے لاہور کی، جہاں داتا دربار پر 4 روز سے دھرنا دیے بیٹھے تحریک لبیک کے سربراہ خادم رضوی نے حکومت کو فیض آباد دھرنے کے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے مزید 2 دن کی مہلت دے دی۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمین سیٹھی، میں نصرت جاوید۔ 0512606027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہے جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول بول پاکستان 1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ بول بول پاکستان @dawnnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمیں انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جائیے، وہاں ڈان نیوز کا چینل ہے، آپ اس پہ ہمیں لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا بھی گلمین، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اختتام پر شاید کوئی پریس ریلیز آئے اور ہم اس پریس ریلیز کا کوئی بھی تجزیہ کر پائے۔ ابھی تک نہیں آئی، اور مجھے مثلا آ جاتی تو بہتر تھا، نہیں آئی تو کوئی گلہ نہیں۔ جیسے کہ بہت دفعہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بتایا جائے، کہ آپ ہمیں بتائیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کچھ معاملات کو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت سینسٹیو سمجھتے ہیں، بہت حساس سمجھتے ہیں، فائن، یہ آپ کی پریویلیج ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ویژولی اگر آپ آپٹکس کے حوالے سے بات کریں تو اچھی بات ہے کہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی گئے، وہ ہم نے پرسوں آپ کو پتا ہے پورا ڈیووٹ کیا تھا، جو بھی شوپیاں میں ہوا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کم از کم ہم یہ تو دکھا رہے ہیں کہ جی ہماری عسکری اور سیاسی قیادت مل بیٹھ کر اس ایشو کو ایڈریس کر رہی ہے۔ سو اس حوالے سے اتنی بات جو ہے ٹھیک ہے، فائن۔ اب اس کا کوئی رزلٹ آتا ہے یا کیا کوئی نئی صورتحال آتی ہے وہ اندازہ ہو جائے گا 1-2 روز میں۔ یا کشمیر کے علاوہ بھی کوئی اگر امریکہ کے ساتھ یا اور بھی کوئی اس میں وہ یقیناً ہوا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ ہو، اس کو کنیکٹ کیا جائے گا، اور خاص طور پر یہ سوچ کے کہ یہاں سے وہاں گئی ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ 1-2 دنوں میں ہم کس نوعیت کا انیشیٹو لیتے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے اس حوالے سے ایک تھوڑی سی بات بنی تھی کہ انڈیا کا ہائی کمشنر کچھ روز پہلے لاہور گیا تھا، اس سے پہلے تمہیں یاد ہے ایک دوسرے کے سفارتکاروں پر بالکل وہ معاملہ شاید انہوں نے اس میں کچھ کمی آئی، اور اس کے بعد موصوف جو ہیں وہ کل ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ملے، جس پہ آج چودھری نثار صاحب بہت اعتراض کر رہے تھے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھ کہ بھائی اگر ہم نے ایک کیس پلیڈ کرنا ہے اور یہ طے ہے کہ ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی آپ کس طرف چل پڑے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی وہ رابطہ تو بنانا ہوگا، ونڈو آف ڈائلاگ۔ اس پہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چودھری نثار علی خان صاحب کا یہ جو بڑا سخت بیان کہ جی کیوں اس موقع پر ملے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا سمجھ سے بالا تر ہے یا کچھ اس قسم کی کوئی بات کی ان کے مطلب۔ ہاں، لیکن میں یعنی چودھری نثار علی خان صاحب جیسے ایکسپیرینسڈ آدمی سے آپ ان کی سیاست سے ہزارہ اختلاف کریں، مجھے بھی بہت ساری باتوں پہ ہے، لیکن کم از کم وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یار
या तो आप एकदम से ऐलान जंग कर देते नहीं, हैं। और ये कि हर वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होती है जंजुआ साहब, और फिर उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग्स की फिर बाद में हमें खबरें मिल जाती हैं कि भाई वो बैंकॉक में नहीं मिले तो थे इसमें इधर तो कम उधर। से कम it was an हाँ, और ये तो open meeting एग्जैक्टली, ना। सो वही आई मीन ओपन मीटिंग है, उस ओपन मीटिंग के बाद देयर इज अ प्रेस रिलीज। हमारे कौमी सलामती कौंसिल के मुशीर के दफ्तर से एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पर हमारे जो कंसर्न्स हैं वो उनको इंडियन हाई कमिश्नर तक पहुंचाया। अब भारत की वजारत खारजा ने उसकी नंबर 1 तरदीद नहीं की, नहीं तो बिल्कुल व्हाट कश्मीर इस मीटिंग में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। हाँ नहीं, दे डिडंट, राइट। नंबर 2, उसका कोई जवाब भी नहीं दिया, रद्द अमल ठीक है, नेगेटिव के जी उन्होंने तो ये कहा अलबत्ता। हमने ये कहा नहीं, ठीक है। तो आई मीन इसमें ये फिर हम क्यों नहीं इसको फेस वैल्यू पे लेते और नहीं तो फेस वैल्यू पे ही लेंगे वाकई, उसके अलावा क्या करने गए होंगे नासिर Why जंजुआ not? साहब मतलब खामखा इंडियन हाई कमिश्नर को एक बयान देकर पॉइंट स्कोरिंग, बहरहाल ये उनकी मर्जी है। अब मसला ये है बीबी कि मैंने आसिफ अली जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब यस, की मैं नहीं सुन पाई इसलिए जो मैंने है, उसकी कोई वो शॉट भी नहीं डाला, जी लेकिन वो तकरीर बहुत गौर से सुनी, अकेले यूजुअल बैठ के स्टफ और एनीथिंग एल्स। एवरीथिंग मैंने सुनी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो 1 पॉइंट एजेंडा पेश किया है कि नवाज शरीफ साहब आपके साथ अब सुलह नहीं हो सकती, ओके, और मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि आपका सेनेट चेयरमैन नहीं होने दूंगा। अच्छा, वो अभी तक सियासी बहुत खुश तौर हैं इस पर बात तो पे। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इज गॉन। हाँ, मैं एक चीज सुना था, उन्होंने कहा जलसियां हो रही हैं पंजाब में। हाँ ये थोड़ी नहीं ज्यादती लेकिन कर गए अच्छे अरे खासे। बीबी वो बाकी तो तफसीलात होती है ना, हमें तो फोकस ये करना चाहिए what was कि the main बुलेट point? पॉइंट्स जो हैं वो तकरीर के क्या निकलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा मेरी दानिश में आज का उनका बुलेट पॉइंट ये है कि आपको सियासी तौर पे खत्म करेंगे। ये तो फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ ना वज़ीर आज़म बनेंगे ना उनकी जमात बनेगी, लेकिन उन्होंने साथ में जैसे पहले सेनेट चेयरमैन का प्रेडिक्ट किया था, क्लेम किया था, आज ये कहा है कि पंजाब का वज़ीर आला भी नहीं बनने देंगे। अच्छा, चलो, यानी मैं वो कह रहा हूँ ना, जो नई बात जो लास्ट टाइम ही क्लेम्ड इट, ही डिड इट, सो लेट्स सी। बीबी मैं ये कह रहा हूँ ना कि उन्होंने कहा नंबर 1। ठीक, दूसरी जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि पंजाब का अगर वज़ीर आला PMLN से नहीं बनने देना तो क्या PTI का मतलब? पीपल्स पार्टी का होगा। नहीं वो तो नहीं, मेरे ख्याल में उनको भी पता है। अब अगर इनका भी नहीं होना तो उन्होंने इसमें ये कहा कि ये हम फैसला करेंगे कि किसके साथ इत्तेहाद करना है, यानी वो मुस्तकबिल में भी इस बात का इम्कान देख रहे हैं कि जैसे संजरानी साहब की सूरत में PTI और PPP ने मिलकर एक सेनेट चेयरमैन दिया था, जवाब गज़ल के तौर पर इमरान खान साहब की जमात ने उनकी जमात के सलीम मांडवीवाला साहब को डिप्टी चेयरमैन के वोट दे दिए, तो सीधे साधे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद अगर हंग पार्लियामेंट आई, ठीक, जो उनके ख्याल में आएगी, उनकी तकरीर का कंटेंट ये बता रहा है, तो वो नवाज शरीफ साहब के साथ तो किसी सूरत कोई अलायंस ठीक, या मखलूत हुकूमत नहीं बनाएंगे, पीछे PTI बची, लेकिन इमरान भाई से मोहब्बतें हैं। उनकी कभी खत्म हुई कब थी? नहीं बीबी, When did he say he wouldn't अब do ये it? तो अब ये देखो ना, अब आप बिल्कुल आप इसको कटिंग वो कर रही हो ना। अब ये तकरीर होगी, मैंने मान लिया, ठीक, लेकिन साथ ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन खड़े होते हाँ, हैं, अब उन्होंने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि तालिबान के बिगड़े हुए के बिछड़े हुए भाई इमरान खान। यस, ओके, राइट। उसके बाद कहते हैं कि ज्यादा फोकस, देखो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था 2-3 बातें क्या कि एक जैसी कुछ कोहेरेंट? बीबी, आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल 2018 है। इस 2018 पे इल्जाम है कि ये पाकिस्तान में इलेक्शन ईयर है। नंबर 1, मुझे इन दोनों की तकारीर में हरगिज ये पैगाम नहीं मिला कि इनके ख्याल में वक्त पर इलेक्शन नहीं हो रहे। ठीक है, ओके, हो गई बात, चलें जी, सही। ओके, ये पैगाम देने के बाद ठीक है, आसिफ जरदारी साहब ने मुस्तकबिल का सिनारियो भी बता दिया कि जी हंग पार्लियामेंट आएगी,
हम प्रेफर करेंगे कि नवाज शरीफ से तो सवाल ही पैदा नहीं फिर होता, बाकी देखेंगे। तो इमरान खान ठीक है, नहीं, या और कौन बाकी बचा और पीछे? जमातें तो या। वही रह गई ना। अब इस बात को जहन में रखते हुए कि इंतखाबात हो रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर का पूरा फोकस ये रखा कि गालिबन उनका ये होता है ना कि बाकी सूबों के बारे में गुड गवर्नेंस ये वो, तो उन्होंने ये कि जी हमने क्या फोकस्ड हेल्थ, अच्छा ओके, नहरों की सफाई वगैरह वगैरह उस पर ज़्यादा फोकस कर दिया। लेकिन वो फोकस करते हुए इमरान खान साहब आखिर पर आए हैं वो, जिसमें उन्होंने कहा कि हर दहाई में एक भुट्टो कुर्बानी देता है वक्त के फिरौन के आगे, और आज के दौर के फिरौन जो है वो मजहबी ओके, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी है। राइट, ये ठीक, अब उस हवाले से उनकी दानिश में आज के दौर के फिरौन तो हो गए मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी, फाइन, और ये तो हो गए आज के दौर के फिरौन। ठीक, लेकिन उनकी प्रॉक्सीज बिलावल साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ हैं और इमरान खान हैं। ठीक, वालिद साहब कहते हैं कि हम उनकी नवाज के proxies। साथ नहीं करेंगे, तो तो फिर अब प्रॉक्सी के मुझे साथ अलायंस कर लेंगे। एक यानी कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल गया हाँ, सही कह रहे हैं, मैसेजिंग क्लियर नहीं है फिर कि पीपल्स पार्टी का। आसिफ साहब मुझे मैसेज ये दे रहे हैं कि हर शख्स मंजूर, नो नवाज, Right, फाइन, accommodation। क्लियर एक पोजीशन है। राइट, अब ये नहीं समझ आ रही कि किसकी पोजीशन मानी जाए। और अगर हमें पंजाब की वजारत आला को शरीफ फैमिली से बचाने के लिए इमरान खान से भी या किसी से भी इत्तेहाद करना कर पड़े, लेंगे। जो अपेरेंटली उन्हीं से ही हाँ हुआ हाँ, और ना, कौन होगा, लेट्स फेयर इनफ, ओके, तो हम कर दैट्स लेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग नुसरत साहब, दैट मींस इलेक्शन तो ये एक मैसेज आ गया ना, स्प्लिट हो जाएगा कि तो क्या चलें। करना चाहिए। दूसरी तरफ उसी मौके पर अपने वालिद साहब की तकरीर के बाद वो आज के दौर का फिरौन डिक्लेयर कर रहे हैं मजहबी दहशत यानी कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को, और उसका जो वो समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में जो समझ प्रोसेस गए, है, इमरान खान और नवाज शरीफ हैं, तो फिर ये कंफ्यूज मैसेजिंग हुई। फिर फिरौन के साथ लड़ाई कैसे होगी फिर? देखेंगे ना नुसरत साहब, होगा ये इलेक्शन के बाद, वी विल सी कि क्या बिलावल भुट्टो मुझे ये यहीं strategy रहेंगे समझ या में। चले जाएंगे वापस लंदन, तो फिर समझ लीजिएगा कि Please, किसकी तुम स्ट्रैटेजी। काफी कभी कभार रैशनल और अकल की कम से नुसरत कम साहब, मुझे मुझसे इनकी क्या स्ट्रैटेजी समझ में आ सकती है? मैं सिर्फ ये आगे प्रिडिक्ट तो क्या मतलब यही इन्विजन कर सकती हूँ कि जब इलेक्शन होंगे नताइज के मुताबिक देखा जाएगा कि कौन सी वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है, और उसके बाद या तो बिलावल साहब चले जाएंगे लंदन या जरदारी साहब चले जाएंगे दुबई, एक यहाँ कोई रह है? जाएगा। हाँ, यही होगा ना, क्यों? बिकॉज वन स्ट्रैटेजी, दोनों ये स्ट्रैटेजी साथ में तो नहीं चल सकती ना, एक ये ही क्यों होगी ना। नहीं हो सकता कि अगर फर्ज मतलब करो फिरौन वो- के साथ आप लड़ाई और अलायंस दोनों तो नहीं कर सकते ना नुसरत साहब, कम ऑन, हाउ कैन यू बी फाइटिंग द फिरौन एंड अलाइंग विद द फिरौन एट द सेम टाइम? बहरहाल यू कांट, मुझे सो वन इस और द हवाले अदर, से एक काम होगा, फिर समझ आ यहाँ जाएगी। मेरी बेहतर होता कि ये अगर इलेक्शन ईयर है तो आज की जो तकरीब थी उसमें कुछ एक जैसा उसमें मैसेज एक देते कोहेसिव Yeah, एक absolutely. मैसेज जाता। No, मैं सही कह रहे हैं, दयानतदारी की बात है कि दोनों तकरीर को सुनने के बाद समझ मुझे नहीं। कंफ्यूज्ड मैसेज आया। या आई नो, ठीक, Yeah. अब ये Fair तो enough. एक बात है। ठीक, दूसरी बात, दूसरी जो अहम तरीन बात है जिस पे मुझे हैरत हुई है, यानी मैं आप जो कह ले, मेरी ज़ाती दोस्ती अलग है, उनकी सियासत से इख्तलाफात या डिस्टेंस अलग है, ठीक है, ठीक, अपनी तमाम तर बहुत सारे इश्यूज पर डिफरेंसेस के बावजूद मैं ये बात मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब को पंजाब की जो ग्राउंड रियलिटी है फिर उसका अंदाजा नहीं है। वो इसके बारे में वो और बिलावल भुट्टो साहब दोनों बेखबर हो। ठीक है, बिल्कुल, क्यों, वाकई, या यानी मैं ठीक है। हैरान, ठीक, मैं इस बेखबरी की बात जो है पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं कर रहा हूँ। ब्रेक, चलें, मैं इस बेखबरी पंजाब पे आना चाहता हूँ, ये मेरा फोकस है। ठीक है, फाइन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज घड़ी खुदा बख्श में जो चेयरमैन और शरीक चेयरमैन ने तकरीर की उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। यस नुसरत साहब। अच्छा, मुझे जो है, मैं बखुदा बिल्कुल एनालिटिकल बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं उनको बेखबर कोई नहीं है पंजाब के हालात मैं की। यानी कि ना तो मैं किसी की मुझे तस्दीक मकसूद है, ठीक है। ना मैं किसी का जवाब दे रहा हूँ, ना मैं बाकायदा को अलार्मिस्ट हो रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। राइट। एक सहाफ़ी के तौर पर जो मेरा फ़र्ज है मैं वो पूरा कर रहा हूँ। आपको याद है कि परसों जैसे ही हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, मैंने कहा गुलमी ने, ये लाहौर में हाँ, या है तो ये हमारी स्क्रीनों पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? तो मैंने कहा भी वो फिर बैठ गए। हाँ बिल्कुल। भाई, हम लोगों ने इज्तमाई तौर पर शुतुरमुर्ग वाला रवैया अख्तियार कर रखा है। और ये सहाफत भी नहीं है, सहाफती बददियानती है। ये कैसे हो सकता है कि ये एक तंजीम जिसने पहले 22 दिन तक रावलपिंडी को इस्लामाबाद से काट के रखा हो, फिर एक मुआहदा हो, वो तंजीम दोबारा लाहौर में जाके बैठ जाए और आप उसका जिक्र तक न करें अखबारों में। नहीं, आज भी एक अखबार और में आई टीवी थी खबर, मैंने देखा अंग्रेजी के, कम से कम एक अखबार में सिर्फ खुदा का खबर आई थी। वास्ता दैट्स है। इट, डेली टाइम्स पे एक लगी ये हुई थी कि ज्यादती की बात है। आई नो। खुदा का सही शुक्र कह रहे है, मैंने फिर अगेन किसी के साथ को मुकाबले की बात ही, मैं बेसिक समझता हूँ सहाफत का बुनियादी उसूल के, खबर तो दो यार, आप उससे एग्री करो या ना करो, मैं कोई उनका हामी तो नहीं हो सकता ना, जाहिर है। Yes, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं कैसे अपनी आंखों के सामने ये जुलूस निकला हुआ मैं कहूँ कि है ही नहीं। नहीं, ठीक है। और अगर उस आपका जुलूस दरबार में बहुत 4 दिन शिद्दत से हो, लोग बैठे हुए हैं अगर नुसरत साहब, बहुत शिद्दत हो, बहुत पैशन हो, जैसे यहाँ देखा था हमने। shouldn't I report it? Yes, you I should. मेरा फर्ज ये है भाई, मेरा काम, मैं कोई हुकूमत तो नहीं हूँ ना, मैं कहूँ कि जी वो नहीं सब ठीक है जी, ठीक ले, यू नो। ठीक है। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखते हुए मुझे बड़ी हैरत हुई, बहुत हैरत हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसा बाकायदा पढ़ाकू इंसान, जो चीजें किताबें भी पढ़ते हैं, अखबारात भी देखते ठीक है, हैं, राइट। ठीक, वो कह रहे हैं कि आज के दौर के फिरौन है मजहबी इंतहा पसंदी, और ये लेकिन उसकी प्रॉक्सीज हैं ये। अरे भाई, आपको ये समझ नहीं आ रही कि वो तो दे आर ईटिंग इनटू योर वोट बैंक। वो तो खुद आप बाकायदा देखो, मिल्ली मुस्लिम लीग का तो कज़िया चल रहा है। हाँ, नहीं, कि चलो लेकिन भाई, yes, उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं या उनकी नहीं, मेन स्ट्रीमिंग का किस्सा चला था बस, ये तो रजिस्टर हो के अब वजारत अपनी दाखिला से। लेकिन रजिस्ट्रेशन ड्राइव भी करा रहे हैं अभी, हमें बता अरे रहा था प्रोड्यूसर कि बीबी, उनके मैसेज वैसे रजिस्ट्रेशन जाते हैं, आप ड्राइव CNN है से भेजें। कराची में बहुत सारे मकामात पर। जब इमरान खान साहब गए मुहिम साजी के लिए, तो इस तंजीम के कुछ मकामात पर कैंप्स पे ज्यादा बड़ा मजमा था पीटीआई से। ठीक है, आई कैन इमेजिन सो, अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो ना करो। बट दैट डजंट चेंज द रियलिटी। 1986 से 1988 तक हमारे अखबारात में एमक्यूएम का जिक्र नहीं होता था इस तरह कि ये इस तरह। वो जब 1988 के इलेक्शन हुए तो हैरान हो सही गए। है, राइट। ठीक, ये भी हैरान ही करेंगे इसका मतलब। अरे मैं, कर लेकिन सकते हैं, क्यों? सही कह रहे हैं। मामला इतना सादा नहीं है। मैं अभी, उन्होंने न सिर्फ अपनी मुहिम साजी शुरू कर रखी, बाकायदा वो जो आ रहे हैं लोगों को कि जी हाँ, आप अपना CNC नंबर SMS दें, CNIC भेजें और रजिस्टर हों इस जमात में। प्लस एक मिनट, मदीन से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया, हुक्म करें। मैं मासूम जूना से। जी फरमाइए फरमाइए। सर, मैं कारकुन हूँ पीपल्स पार्टी का। अच्छा जी, उस वक्त से जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को सजा लगी थी, उसी वक्त से मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। ठीक। तो मुझे अफसोस हुआ, ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ लैंग्वेज जो थोड़ा सा अगर उसमें धीमी आवाज में बात करते कि ये जैसे इमरान खान पे इल्जाम लगाया या नवाज शरीफ पे, भाई सियासत को सियासत रहने दो, एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाओ। चले, अच्छा चले, ठीक, आपकी सोच है, आप समझते हैं कि आप एक शुरू से
वफादार होते हुए आप बिलावल भुट्टो साहब से ज़रा धीमे लहजे की तवक्को रखते हैं, डिफरेंट टाइप की पॉलिटिक्स, आपका हक़ है जी। शायद एक हवा मैं भी आपसे एग्री करूं, लेकिन भैया जिस तरह की आग लगी हुई है उसमें थोड़ा सा जलवा तो दिखाना पड़ता है। तो मैं उस जलवे के हवाले से ही बल्कि आपको बताना चाहता हूं कि हमें तो छोड़ो, हमें तो अरे ब्रेक, ये मौजू बहुत अहम है, ये इसको एजिटेट करें चलें, वरना वी आर हेडिंग फॉर सरप्राइज। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं आपको कि एक देखो अमेरिका में जो बैठे हुए हैं ना, उनकी तो सुई अटकी हुई है हाफिज सईद साहब, मिल्ली मुस्लिम लीग। ये तो अभी उनके रेडार पे भी नहीं आए शायद। ठीक है भाई, उन्हें क्या, उन्हें इससे क्या लेना देना बीबी। देखो अमेरिका को दुनिया में कहीं भी मजहबी इंतहा पसंदी से कोई इलाका नहीं, Absolutely, जब तक उनके इंटरेस्ट हिट नहीं होते। बिल्कुल सही। वरना नरेंद्र मोदी वही शख्स है हाँ, जिसको बैन किया हुआ था उन्होंने अमेरिका में जाने से, जिसके गुजरात के राइट्स की वजह से वीजा नहीं दे रहे थे, बिल्कुल एज CM, जबकि ये वजीर आला भी था। सही बात, तो उन्हें तो कोई मसला नहीं है, नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ना ही उन्हें जमहूरियत का कोई दर्द है। हाँ नहीं, और अब तो खैर बिल्कुल वरना इतना प्यारा फोन आया मिस्र के सीसी को मुबारकबाद का, जो अपने खिलाफ ही खड़ा होकर जीत गया। हाँ बस खैर, अब अच्छी जमहूरियत होनी माइकल कूगलमैन, ये वहाँ पे एक थिंक टैंक का बहुत अहम आदमी है, साउथ एशिया पे बड़ी निगाह रखता है, ठीक है जी। वुडरो विल्सन सेंटर, बड़ा रोब वाला नाम है। आज 4 अप्रैल इंडिया की एक पब्लिकेशन के लिए दी प्रिंट, जो शेखर गुप्ता ने उसका पेटेंट करते हैं, उन्होंने कॉलम लिखा जिसमें एक्सप्लेन किया है कि ये जो कल हमने डिस्कस किया है एलईटी का मिल्ली मुस्लिम लीग की सूरत भी कबूल नहीं, किसी सूरत भी कबूल नहीं, उसी को मौसूफ ने ये वजाहत करने की कोशिश की ऐसा क्यों है कि ये फैसला क्यों किया। तो वजूहात मौसूफ ने 3 गिनवाई। अच्छा, 1 2 3। अब उनमें से मैं, चूंकि कल हम उसको डिस्कस कर चुके हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, डिटेल में नहीं जा तो हमें उस पे, क्योंकि उसका तो सारा आर्गुमेंट बेसिकली अमेरिकन परसेप्शन से, हाँ जाहिर है, लेकिन उसे समझना तो चाहिए ना नुसरत साहब, क्योंकि ये बाबा बहुत तो करता कल हमने अपना भी किया, उनका भी बता दिया ना, उनकी पूरी पढ़ दी थी। लेकिन किसी एक पॉइंट अब इसमें जो बात गौर तलब, जो बिलावल से मुझे हैरत है कि वो ये निकलते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ये तो प्रॉक्सीज हैं, उधर वो कह रहे हैं हकीकतन हार्ड लाइनर्स, इंतहा पसंदों को सियासी अमल में लाना, ये पाकिस्तान जैसे ऑलरेडी जो पहले से ही बहुत रेडिकलाइज हो चुका है मुल्क में, बहुत खतरनाक बात होगी। अच्छा, मतलब माइकल और ओमिनसली इन अ कंट्री जहां पे करते करते उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में MML ने 6000 वोट लिए हैं, वो NA जिसमें बेगम कुलसूम नवाज साहब, राइट बिल्कुल, कि 6000 वोट लिए, और इसका तकाबुल वो किससे कर रहा है, कह रहा है 4 टाइम्स, और ये वोट जो उन्होंने लिए हैं ये पाकिस्तान की एक वेल एस्टेब्लिश्ड पीपल्स पार्टी से 4 गुना ज्यादा है। ये सही है। तो मतलब ये हुआ कि सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं ही नहीं, आलमी दुनिया में अमरीकी थिंक टैंक्स में, अखबारात में पाकिस्तान पर निगाह रखने वाले ये तय कर बैठे हैं कि जनाब आप तो मेन स्ट्रीमिंग में भी, आप तो
मेन स्ट्रीमिंग में भी कम से कम पंजाब में मजहबी इंतहा पसंदों के प्रॉक्सी से नहीं बल्कि उनसे भी हार चुके हैं. Yeah. सही. So these are the questions. Yes, and that is the reality. I think he's right. I mean, इस पे मैं क्या नहीं, insist और उसके बाद सही है जैसे ही वो कह रहे बाबा हैं. इसने तो मैं फिर वही कह रहा हूं ना, इन्हें तो अमेरिका का तो साम्राज्य है, मिल्ली मुस्लिम लीग, सही है, हाफिज और वो सईद, उसका इंडिया कनेक्शन है. दैट इज व्हाई वी नो उन्हें दैट. तो ठीक है, पर इनसे उन्होंने इसमें जिक्र तक नहीं किया. हालांकि उनके हालांकि ज्यादा इसमें तहरीक के ज्यादा वोट. तहरीक के ज्यादा वोट थे. दैट वाज द सरप्राइज. तभी तो ये हम सही कह रहे हैं. उनके लिए मैं दोबारा नहीं, कह रहा हूं हमारे कि लिए ये उनके बात लिए उस ये वक्त मसला surprising ही थी. नहीं है. क्योंकि बस उस वक्त बहस इन एमएमएल की मेन स्ट्रीमिंग पे चल रही थी और वोट ज्यादा ये ले गए थे. दैट्स व्हाट हैड हैपेंड. हम सबकी तवज्जो इस पे लगी हुई थी कि जी वो कितने और लेंगे. उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ये लोग सही कह रहे हैं. अब उनका बाकायदा तराना चल रहा है, जी वो बिल्कुल. बाकायदा, और वो जिस अंदाज में अपनी रुकन साजी की और ये कैंपेन और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं. हम सहाफ़ी होते हुए हम लोग यार नाम नहाद विजुअल उस पर बातें करते हैं. हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसमें एक एक फ्रेम दिखाएं, वो जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बताएं, और फिर बैठें कि बड़े बड़े ये जो फन्ने खान शेर हैं रेटिंग्स के यहाँ बैठें, इसको चलाएं तो रेटिंग्स किसकी है. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मुझे भाई, पता है नुसरत साहब. कि किसका मैसेज ज्यादा पोटेंट जा रहा है. इनका ऑडियो विजुअल, इनका ऑडियो विजुअल साइंस के साथ. एब्सोल्युटली. इफ मीडियम इज द मैसेज. नहीं ठीक है. बड़े नहीं बड़े कर रहा. यानी कि यहाँ पर है ना जिन्होंने खिड़की तोड़ रेटिंग्स शर्तिया देते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ तुम बैठो और इसका जवाब निकालो और मुझे एनालिसिस करके दो. हम अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे कम्युनिकेट नहीं करते. इसीलिए आपको ये बात पता है, फुस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता. लोग कहते हैं कि मैं और तुम जो बात करते हैं ना, हम एरी फेरी बातें कर रहे होते हैं, लोगों को उनसे नहीं है. वो सीधा इसका मैसेज ये है, टक टक टक. नहीं ये जितना आपने इसके जवाब में, अब वो चिढ़ है मुझे उस लफ्ज से, मैं क्या? तो बयानिया Narrative, बयानिया narrative, बयानिया narrative. बयानिया बयानिया Counter क्या- narrative. क्या है. कुछ भी नहीं है नुसरत साहब. हम बात ही नहीं कर रहे तो काउंटर नैरेटिव. आपने गुड गवर्नेंस पे आते हैं बॉस ब्रेक के बाद. हर ये सूरत शहबाज का आदमी है भाई. ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, वो क्या कहा उन्होंने उस पर बात करेंगे. हमारे साथ रहिए. हमें ट्वीट जरूर कीजिए. हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान. अच्छा भाई, वो मैं ये भूल गया था, जब हम यानी पहली ब्रेक पर गए ना तो वो आ गई थी प्रेस रिलीज. अच्छा, वो यानी कश्मीर फोकस, यानी बहुत मुख्तसर थी प्रेस रिलीज. और अब कुछ ये भी है शायद कि वजीर आजम साहब गालिबन कल इसके बारे में और कुछ अच्छा यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक या ब्रीफिंग की कुछ ठीक और है, ऐसा देख लेते हैं करें. फिर क्या होगा. लेकिन बहरहाल वो यानी जो मैं कह रहा था ना, मुझे इंतजार था, वो 8:15 बजे आ गई अच्छा थी. चले 8:15 फिर बात करनी चाहिए. और बता दिया. ये कि कश्मीर पे ही ज्यादातर फोकस रहा. नहीं, उसी पर ही फोकस है. बिल्कुल आखिर में एक लाइन है कि इलाकाई सूरत हाल. वो आई एम श्योर वैसी भी होती होगी. चले जी. लेकिन बात करें मेरे तो शहबाज लिए जो मसला जो हो रहा है वो यही है. मिसाल के तौर पर आज उनकी डेडलाइन थी, आज 4 बजे उन्होंने 2 दिन के लिए और बढ़ा दी. अच्छा, दरीस ना 2 दिन को बढ़ाने का भी कोई जवाब देना होता है. तो उन्होंने कहा कि हमारा एक मुतालबा पूरा हो गया कि गालिबन पंजाब हुकूमत ने आज़ान के वक्त कहा था कि सिर्फ एक स्पीकर हो, चारों तरफ नहीं. उन्होंने कहा जी कि पंजाब हुकूमत ने कंसीड कर लिया है, मुतालबा मान लिया और है नोटिफिकेशन भी जारी हो गया. और नोटिफिकेशन उन्होंने दावा. उन्होंने यस. ठीक. दूसरी तरफ कल उनके जो तर्जुमान थे उन्होंने कहा जी असल में मसला ये है कि इनके पास लोग हैं इर्द गिर्द, तो अगर हम इन्हें कुछ कहेंगे पंजाब हुकूमत के तो वो तर्जुमान. पहले आपको पता है जो हुआ था. फैजाबाद में हम नहीं चाह रहे कि ऐसा कोई और वाक़या हो. उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब जब वो थे तो वो बस यही कह रहे थे कि जी एक तो वो आर्मी चीफ, उनको वो जमहूरी दोस्त हैं, और दूसरा इमरान खान. अब भाई इस वक्त या जो लोग सही कह रहे हैं. यहाँ रहते हैं
उनका मसला फिल वक्त इमरान खान नहीं है, नहीं, वो है दाता दरबार में बैठे लोग जिनकी वजह से पूरे जैसे शहर में लोगों को रावलपिंडी और मुश्किल आता इस्लामाबाद में है। था। एब्सोल्युटली, सवाल ये अपैरेंटली कि लाहौर आप में आपके पास क्या है उसकी स्ट्रेटजी? तो किसी ने ना उनसे पूछा ना उन्होंने बताया, ना उन्होंने और किसी ने पूछा भी नहीं। अरे बीबी, हम जब जिक्र ही नहीं करते। नहीं, कोई एक सहाफी पूछ ही लेता कि शहबाज साहब यहाँ दाता दरबार पे इतने लोग बैठे हुए हैं, आज उन्होंने 4 बजे से पहले ही बात कर रहे थे ना, ये उन्होंने बताना है, आप जरा क्या कर रहे हैं आप इनके वो बारे में। तो बल्कि देखो ना, उन्होंने तो बड़ा कमाल रखा हुआ है अपनी दानिश में। ये मामलात उन्होंने राना सनाउल्लाह को आउटसोर्स कर रखे हैं, ठीक है, और टेलीविजन के ऊपर वो आ जाते हैं मलिक मोहम्मद अली साहब। अच्छा, डिसेंट, ठीक है भाई, लेकिन यार आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, बकौल आपके कि आपने एक नैरेटिव भी बदल दिया है। सियासत इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट। मेगा करप्शन, नहीं सॉरी मेगा डेवलपमेंट, ये नहीं, ये नहीं, देखो जो बात मैंने नहीं की आपसे गलती नहीं होती, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता, छोड़े चले। ओके यार, एक तो बद से बदनाम बुरा, ये स्लिप है, स्लिप ऑफ टंग। तो मेगा डेवलपमेंट एंड द मेगा प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, तो ताजमहल यानी मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस में कह रहा हूँ। अब वो तो नहीं है, वो नहीं हो रहा भाई, और अब उसका अल्टरनेटिव था तो उसको डिमोलिश कर दिया, या डिमोलिश कर रहे हैं इमरान खान साहब का। जी ये तो सारी दिखावे की चीजें हैं, एक ओपिनियन, हाँ, एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। एक हवाले से बिलावल भी उसको डिमोलिश कर रहे थे आज, हाँ, वो कि कहते हैं भाई, क्या गुड गवर्नेंस। यानी जब वो अपनी बात कर रहे थे तो वो जी नहरों की सफाई और हाँ, कि जो वो असल तो- चीजें होनी कि जी चाहिए और ये वो नहीं। हमने की हैं और आइंदा ठीक है। दुरुस्त। लेकिन आप ये देखें कि पैशन के साथ जो एक पैगाम बढ़ रहा है, जिसकी आपने एक्सट्रीम देखी यहाँ पे भाई, उसको आप कहां और किन अल्फाज में, किस चूरन के साथ उसको काउंटर कर रहे हैं? नहीं कर रहे, और कोई भी नहीं कर रहा, मतलब इन तीनों बड़ी जमातों में से कोई भी नहीं कर रहा, कि नहीं नजर आता और हमें तो, मतलब वो किसी ने जिक्र हरगिज़- तक नहीं किया। अच्छा, दूसरा ये है ना कि बहरहाल वो नहीं, उन्होंने कहा कि 30 सेकंड्स, और लतीफा ये है कि ये उनको प्रॉक्सी कह रहे हैं, और वो इन तीनों पे यकसां, हाँ, मतलब उनके लिए इनमें कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। For the और clear, उनका yes, मैसेज जो जा रहा है वो हमने उसके लिए स्पेस बना के दी वो है। इतना इफेक्टिवली जा रहा है बकौल अब आपके, वो सही उस कह पे रहे हैं। छिक्के लगा रहे हैं, और मुझे तो खौफ आ रहा है कि इलेक्शंस में वो क्या दिखाएंगे। मतलब बहरहाल चलें। वो देखते हैं, इस पे निगाह हम तो ठीक कम है, से कम। डेफिनेटली। चलें, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।